Hi, you all. I have so much to talk about, and I am, first of all, very, very, very deeply sorry for not being able to be consistent for the past 2 or 3 Sundays and not posting anything essentially, which has also made me feel bad. But I'm sorry for also letting you down. I have a lot to talk about in this video. A lot of about where was I in the past few weeks, why was I not posting, what do I have ahead in my life, what are my life plans now. But before I dive into all of that, let me give you a quick background. This video is just a life update wherein I tell you about what's going on in my life. And currently it's 16th of May when I'm shooting this video, and 19th of May, which is 3 days from now, my MBBS internship ends forever. I don't even know how I feel while I say this, because पिछले 1 साल से internship was all that my life was about. So many things, so many rotations, so many duties, so many night duties, so many 24 hours that I am just blown away with the fact that it is finally ending and it is no more going to be such a big part or a part at all of my life. And of course, because college is ending, the degree is ending, I'm a fresh out of college graduate. Everyone has questions from this fresh out of college graduate, that what plans do you have now, what are you planning to do, etc, etc. And especially in the field that I am, it is a very conventional career path that you go ahead, prep for your PG right in your internship only, give your PG and give your PG exam is what I'm talking about, and then enter postgrad and stuff. And a lot of you all had been asking me very consistently in my comments, etc, that are you not preparing for PG, what are your plans, etc, etc. So I'm going to be breaking down all of that in this particular video. This will be a slightly long video, इसलिए मैं तो अपना breakfast लेकर ही बैठी हूँ, my Saturday breakfast. Sunday because I'm going to be on duty, but if you are watching this with me, come you also get your breakfast. Let's have food and talk. आज मैंने बहुत healthy breakfast मंगाया है अपने लिए. So we have this green juice, a cottage cheese salad. Okay, so my dearest friends, let us begin. The primary question that a lot of y'all had was मैं इतने टाइम से MIA क्यों थी, मैं videos क्यों नहीं डाल पा रही थी. The sole reason being, ऑनेस्टली मेरा लास्ट रोटेशन अभी लास्ट 6 हफ्ते से जो चल रहा है, एक्चुअली 7 वीक से, इट इज़ गायनी. एंड गायनी हैज़ बिन टू हेक्टिक फॉर मी टू बी एबल टू डू एनी थिंग, इज़ हाउ आई वॉन्ट टू पुट इट वेरी प्लेनली. ऐसा नहीं है कि मैंने और चीज़ें नहीं करी हैं, बट इन द मोमेंट मेरे को कॉन्टेंट को प्रायोरिटाइज करने जितना टाइम नहीं मिल रहा था. जैसे वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट एंड स्टफ, तो साइड बाय साइड वो सब भी चल रहा था, विच इज़ वाई कॉन्टेंट हैड टू take a back seat. I was feeling extremely sad for it, but मैं honestly कुछ कर नहीं पा रही थी. I was very helpless because gynae was a hectic, and I feel B वो वाला factor भी था थोड़ा सा, probably that since it's the last rotation, तो वो थोड़ा कम hectic होके भी थोड़ी ज़्यादा hectic लग रही थी, because it's the last stretch and you're just so done, you're tired and you just want कि अब ये ख़त्म हो जाए किसी तरह, because 1 year of such a hectic internship like literally does something to you. You are just कि भाई अब बस ये ख़त्म करो, अब हो गया है, बहुत ड्यूटी कर ली मैंने, बहुत मैंने सैम्पल्स ले लिए, फॉर्म्स बना लिए, एक्सरे बना लिए, अल्ट्रासाउंड बना लिए. एंड आई किड यू नॉट, आज सुबह मैं सो रही थी एंड आई डिड नॉट हैव टू गो टू ड्यूटी इन द मॉर्निंग, बट इवन देन मुझे सपने में ये चीज़ आ रही है कि मैं सिस्टर जी से एफ फॉर्म और अल्ट्रासाउंड फॉर्म मांग रही हूँ. मतलब इट लिटरली डज समथिंग टू योर ब्रेन, मतलब तुम्हारा ना फंक्शनिंग थोड़ा सा हिल जाता है. खैर, दैट्स नॉट द पॉइंट. The point actually is कि पिछले कुछ हफ्तों में I was genuinely very mentally exhausted and burnt out, and कुछ ना कुछ रोज़ होते रहता था, जिसकी वजह से मैं ना रोज़ बहुत ही frustrated घर वापस आती थी, या कुछ तो भी कोई मुझसे कह देता था या कुछ हो जाता था. And I used to be extremely not in that zone of being able to create content. Still मैंने Instagram पे कुछ content pieces create करने की कोशिश की है,
कई सारे मैंने बना बना के स्क्रैप किए हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जो मेरा मूड, मेरा फ्रस्ट्रेशन, मेरा जो नॉट सो हैप्पी सेल्फ है वो उन वीडियोस में बाहर आ जा रहा है, एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। लेकिन वो बस हो जा रहा है बिकॉज यू कांट हाइड योर ऑथेंटिक सेल्फ, या आप कैसा फील कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर वीडियो और व्हाइल यू आर मेकिंग समथिंग। ये particular video of a life update and telling you guys what exactly my plans are is something जो मैंने खुद 2-3 बार फिल्म करने की, एक्चुअली 4-5 बार फिल्म करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने ये वीडियो इतनी बार स्क्रैप किया है बिकॉज हर बार मुझे लगता था कि नहीं, मैं अभी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड मोड में हूँ एंड मैं ये वीडियो तब बनाना चाहती हूँ जब मैं कम्प्लीटली थोड़ी स्टेबल और न्यूट्रल हो जाऊँ एंड आई एम एबल टू सी थिंग्स फ्रॉम अ बेटर लेंस, एंड मैं वो अच्छे से बता भी पाऊँ। मतलब मैं वो देख खुद पाती हूँ इन माई रैशनल सेल्फ, लेकिन मैं चाहती थी कि जब मैं वीडियो एक्टिवली बना रही हूँ तो भी मुझे एक स्टेबल मूड में होना चाहिए ताकि मैं सारे पर्सपेक्टिव्स दे पाऊँ एंड अच्छे से समझा पाऊँ व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ। ठीक है, मैं ना आज थोड़े से पॉइंटर्स लेके बैठी हुई हूँ ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ बात करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एवरीवन वांट्स टू नो आई थिंक एट दिस पॉइंट इज व्हाट आर योर प्लान्स अहेड एंड आर यू गिविंग नीट पीजी। सो सी, मैंने ना ये एक आध पिछले लॉन्ग वीडियो में भी इंडिकेट किया है कि मैं ये 1 साल का सॉर्ट ऑफ ब्रेक ईयर लेना चाहती हूँ एंड आई वांट टू एक्सपेरिमेंट विद माय लाइफ, बट mostly and 90% I am not going to give a PG exam because, and let me give you my reasons. Primarily ऐसा नहीं है कि मुझे कभी PG नहीं करना था, in fact final year तक I was hell bent on doing PG, and जो मेरे PG choices थे वो मैंने videos में भी कई बार reveal किए that I wanted to do either gynae or ENT, but just like I told you मेरी अभी gynae internship चल रही है and honestly I am not enjoying the work as much. मैंने ये रियलाइज किया कि आई लव द सब्जेक्ट, आई लव to study obs and gynae, but the actual work that happens, I am not a person I feel who's cut out for that work. That is one. So my primary problem जो मैंने face करी when I entered internship was मेरे जो सारे PG choices मैंने अपने दिमाग में बना के रखे थे and that most people make in their heads are hardcore clinical branches like medicine हो गया, surgery हो गया, gynae हो गया, some people want to take ortho and stuff like that. These are hardcore clinical branches, but when you actually start working in these branches, and I'm very very glad and grateful कि हमारी internship उस level की hectic होती है कि हम देख पाते हैं कि actually काम क्या होता है और कैसे होता है when you become a resident, and ये सब करके I as a person realized कि ये जो work culture है और ये जो working hours हैं, I don't think I am cut out for it. I personally felt extremely overwhelmed and overstimulated at most of these rotations of mine, especially when medicine came, because medicine हमारे लिए, हमारे hospital का सबसे ज़्यादा hectic department है when it comes to PG or internship. And when I was actively doing my internship there, I had literally zero life left, and that is how our residents also thrive. They do not have a life of their own. They wake up in the morning in the ward only because most of the times they're sleeping there, and उनका पूरा दिन वहीं निकल जाता है. I think the max आधे घंटे पौन घंटे का break that they get is when they just go to their hostel, take a shower, change clothes जो उन्होंने पिछले 2-3 दिन से पहन रखे हैं, and then just come back. I personally felt कि ये particular जिंदगी मैं नहीं जी सकती, and it low-key started scaring me कि मुझे ऐसे अपनी life lead करनी पड़ेगी क्या. I understand, and बहुत लोगों का ये argument होगा कि it is just the next 3 years of your life, but I feel these are the most prime 3 years of my 20s, and मैं उनको ऐसे spend नहीं करना चाहती कि I don't have a life left in myself. And मेरे साथ और भी बड़ी problem ये होती है कि I start to have this constant anxiety that I am not being able to do things that I want to do, that it bothers me even more.
Now, when I eliminated these hardcore clinical branches, of course, there was another argument that a lot of people gave me, that you can actually go for branches जिनका clinical या patient exposure, actually patient interaction थोड़ा कम है. It could be radio or derma, or probably paraclinical branches. You can also consider path or branches like that. लेकिन वहाँ पे मैंने realize किया कि मेरी हमेशा से जो calling थी, जो मेरा ड्राइव था, वो इसी चीज़ से आता था, दैट आई गेट टू टॉक टू पेशेंट्स, आई गेट टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम्स, आई गेट टू मेक देम फील ओके. नाउ अब मैं एक बहुत ही बड़े डिलेमा में आ चुकी थी कि भाई जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पा नहीं रही हूँ, एंड जो मैं कर सकती हूँ वो मुझे करना नहीं है. So that is when I started considering alternate options apart from PG, because it is not like I want to completely cut off myself from the healthcare system or the healthcare industry. I want to do something here, but I want to also do something that I can call of my own. इंटर्नशिप के 1 साल में मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि जॉब करना मेरे लिए बड़ा ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बिकॉज़ मैंने अपने आप से भी काम करा हुआ है, बिकॉज़ आई वाज डूइंग कंटेंट क्रिएशन, टचवुड, एंड मैंने यहाँ पे टीम्स बिल्ड करी हैं, लोग हायर करे हैं. तो मुझे ये समझ आया कि मुझे अपना कुछ करना मच बेटर लगता है एज़ कम्पेयर टू किसी के अंडर काम करना एंड उनसे ऑर्डर्स लेना एंड अपना दिमाग सॉर्ट ऑफ थोड़ा कम यूज़ कर पाना एंड जस्ट गोइंग विद व्हाट माय सीनियर टेल्स मी टू डू. एंड दैट इज़ मेजरली हाउ हायरार्की इन मेडिसिन गोज, लाइक इन कन्वेंशनल मेडिसिन जब आप पीजी करते हो, देन आप एसआरशिप करते हो, देन यू गो हायर अप इन द लैडर. दैट्स हाउ इट गोज. बट इंटर्नशिप में मैंने रियलाइज़ किया कि मैं कैसी लाइफ अपने लिए इन्विजन करती हूँ. ये सवाल मैंने कभी खुद से पूछा ही नहीं था व्हेन आई वाज प्रॉबेबली प्रेपिंग फॉर माय एमबीबीएस, प्रॉबेबली डूइंग माय एमबीबीएस. एंड ये सवाल मैं फाइनली इंटर्नशिप के फेज में जाकर खुद से पूछ रही थी, एंड उसका सोल रीज़न भी अभी तक फाइनल ईयर तक मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही थी. नाउ इज़ व्हेन द एक्चुअल वर्क स्टार्टेड. और बिलीव इट और नॉट, आपको पूरी ज़िंदगी पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब आप करते रहोगे ऑन एंड ऑफ, बट मेजरली आपको काम करना है. तो काम पसंद आना चाहिए, या जिस तरह की लाइफ आपकी है आपको पहले वो पसंद आनी चाहिए इफ़ यू वांट टू कंसिडर समथिंग टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, राइट. इसलिए पर्सनली मैंने इस पर एक रील भी बनाई थी, लेकिन मुझे ये बड़ा ही फ्लॉड कॉन्सेप्ट लगता है कि हम 16-17 साल के बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी स्ट्रीम चूज़ करके, सब्जेक्ट चूज़ करके फाइनली ये डिसाइड कर लें कि उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी क्या करियर ऑप्शन चूज़ करना है. ऑनेस्टली इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एंड मेरे लिए भी आई अंडरस्टैंड कि कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि बट आपके तो पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं, या आपके आसपास इतने डॉक्टर्स थे, या फॉर यू इट वाज नॉट एज डिफ़िकल्ट टू नो, एंड आपको पहले से ही पता था कि डॉक्टर्स की लाइफ कैसी दिखती है और हार्डकोर क्लिनिकल ब्रांचेस कितनी हेक्टिक हो सकती हैं या हो जाती हैं. बिकॉज येस, ऑफकोर्स माई पेरेंट्स बोथ ऑफ देम आर इनटू वेरी हार्डकोर क्लिनिकल branches, both of them. लेकिन I would just put my argument here into saying कि जब तक तुम खुद किसी चीज़ से नहीं गुजरते, तुम दूसरा तुम्हें कितना भी समझा ले, मैं तुम्हें कितना भी बोलूँ कि यार दिस वाज नॉट फॉर मी, मुझे ये चीज़ नहीं जमी, लेकिन जब तक तुम खुद उस चीज़ से नहीं गुजरोगे तुम्हें नहीं समझ आएगा कि वो चीज़ तुम्हारे लिए बनी है या नहीं. The way I am cut out is very different from the way my parents were cut out or the way you are cut out, let's say. तो अगर मैं बोलती हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मेरे लिए काम नहीं करी, उसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी और के लिए भी ना काम करे, और अगर वो किसी और के लिए काम कर रही है इसका भी ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसको 100% मेरे लिए भी काम करना ही चाहिए. ये सारी चीज़ें भी मैंने इंटर्नशिप के दौरान ही रियलाइज़ की. ऐसा नहीं है कि मेरे जो बाकी कोलीग्स और फ्रेंड्स हैं वो पीजी नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दे आर ओके विद दिस प्रोसेस एंड दे आर एक्चुअली हैप्पी विद दिस
लाइफ, बट मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा था कि आई फील लाइक आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस. दैट इज वन. नंबर टू, एंड ऑल्सो अदर ऑप्शंस दैट आई कंसिडर्ड ऑफ कोर्स वर कि मैं क्लिनिकल ब्रांचेस या क्लिनिकल मेडिसिन छोड़ के लेट मी थिंक अबाउट अदर नॉन क्लिनिकल कोर्सेज, जैसे कि लेट्स से MBA हो गया या फिर MPH हो गया, विच इज मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, एंड अदर सिमिलर पोस्ट ग्रेड कोर्सेज. लेकिन आई हैड अ वर्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग MBA, नॉट MPH एज सच, लेकिन MBA करते हुए मैंने कई लोगों से बात किया. लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर डूइंग एन MBA, and after talking to them I realized कि courses like MBA are very placement driven courses. 2 साल में कॉलेज का पूरा गोल और सब कुछ बस इस चीज़ पे होता है कि आपको एंड में प्लेसमेंट लेके जानी है. एंड जैसे कि मैंने जस्ट बताया कि आई डोंट फील लाइक आई एम अ जॉब पर्सन, मुझे हमेशा से खुद ही कुछ करना है. तो वो जो प्लेसमेंट वाला एंगल है वो मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे प्लेसमेंट चाहिए ही नहीं. मुझे कहीं पे जॉब करनी ही नहीं है, मुझे जो भी करना है अपना करना है. तो फिर 2 साल की MBA जस्ट टू गेट अ डिग्री एंड बस गोइंग टू क्लासेस विच आर नॉट मेकिंग सेंस, क्योंकि मुझे खुद को प्लेसमेंट तो चाहिए भी नहीं, मुझे थोड़ा सा कम सेंस मेक किया. इसलिए मैंने MBA को भी एज एन ऑप्शन अभी के लिए मेरे लिए कट आउट कर दिया है, क्रॉस कर दिया है. एंड विच इज़ व्हेन आई फेल्ट कि इट इज़ बेटर कि मैं 1 साल अपने लिए लूँ, खुद के लिए लूँ, खुद जाऊं बाहर दुनिया में, एक्सप्लोर करूं व्हाट आर दी ऑप्शंस एंड मैं क्या क्या कर सकती हूं और करना चाहती हूं. नंबर 3 एंड ऑल्सो अ वेरी बिग रीज़न कम्स फ्रॉम अ कॉन्वर्जेशन जो मैं आई गेस 6-7 महीने पहले अपने पापा से कर रही थी. तब तक मैंने इतना लाउड एंड क्लियर अपने पेरेंट्स को नहीं बोला था कि मुझे आगे PG नहीं करनी है. सो माई डैड वॉज वेरी कैजुअली टॉकिंग टू मी एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ चलो अब PG करो, PG निकालो एंड देन 2nd ईयर में मैं शादी करा दूंगा, बिकॉज दैट इज़ द राइट एज. अब नाउ डोंट टेक मी अदरवाइज, when I heard this, I genuinely got scared. It is not like my dad will force me into anything या कुछ, या अगर मैं मना कर दूंगी तो वो मेरी ज़बरदस्ती शादी करा देंगे. But and even I agree with the fact that कि वो राइट एज होती है, 26-27 इज़ अ गुड एज टू गेट मैरिड. बट माई प्रॉब्लम वॉज कि पहले मैं सोच रही थी कि चलो कोई बात नहीं, 3 साल की PG कर लूँगी एंड प्रॉबली उसके बाद मैं चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँगी. जो भी मैं अभी मेरे प्लान्स हैं वो मैं PG के बाद एक्सप्लोर करने की कोशिश कर लूँगी. लेकिन वेरी रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली मैंने ये समझा कि आई विल नेवर बी 23-24 अगेन. एंड इफ़ आई गो फॉर अ कन्वेंशनल PG, मैं अपने और 3 साल इस चीज़ में लगाती हूँ. व्हेन आई गेट आउट ऑफ PG आई विल बी 27-27.5 ऑफ एज. एंड तब या तो मेरी शादी हो चुकी होगी या फिर मेरी शादी जस्ट होने वाली होगी. एंड फ्रेश आउट ऑफ PG तो डेफिनेटली मेरी शादी हो ही जाएगी, या तो मेरे पेरेंट्स करवा देंगे या मुझे भी लगेगा दैट इट इज़ द राइट एज. सो आई एम नेवर गोइंग टू बी सिंगल, so free of responsibilities and so completely focused on myself and free mentally ever again. अगर मैं अभी PG के लिए चली जाती हूँ तो मेरे 3 साल तो completely PG के अराउंड, PG का सोचने में, PG का काम करने में, ड्यूटीज़ करने में ही निकल जाएंगे. मेरे पास बिल्कुल ऑनेस्टली टाइम नहीं होगा to explore other things. And just when I get out of it, I will have a family, and a family is no less of a responsibility. काफ़ी छोटी चीज़ लगती है ऐसे सुनने वगैरह में, लेकिन इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक अबाउट. एंड ऑनेस्टली जब आप 17-18 के होते हो और आप ये डिसीजन ले रहे होते हो ना, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर इन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब तक शादी और बच्चे एक बहुत ही फार फेच्ड कॉन्सेप्ट लगता है. लेकिन राइट नाउ व्हेन आई एम 23, 1 महीने में मैं 24 की हो जाऊंगी. शादी एंड एवरीथिंग डज नॉट सीम लाइक अ वेरी फार फेच्ड कॉन्सेप्ट. एंड माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो वेरी ओपनली स्टार्टेड टू टॉक अबाउट इट टू मी. माई
mom got married when she was exactly my age. She had me when she was 27. उन्होंने अपनी PG इनफैक्ट इंटर्नशिप भी मेरे साथ लाइक मैरिड होके करी है. उनके सेकेंड ईयर में मैं पैदा हो गई थी. एंड हियर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ब्रिंग अनदर आर्ग्यूमेंट कि जीन्स तो मेरे अंदर वैसे देखो उनके ही हैं. लोग मेरे से कहते हैं ये पता नहीं कैसे फेक करती है ये सब और इंटर्नशिप कर रही है ये कंटेंट क्रिएशन करते करते. भाई जब मेरी माँ गायनी में PG अलॉन्ग विद शादी ससुराल बच्चा मैनेज कर सकती हैं तो मैं इंटर्नशिप और कंटेंट क्रिएशन तो मैनेज कर ही सकती हूँ. बट मुझे नहीं लगता कि मैं उनकी तरह पोस्ट ग्रेड और शादी और वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलॉन्ग विद माई ओन ड्रीम्स मैनेज कर पाऊँगी. क्योंकि आई हैव अ फ्यू ड्रीम्स, आई हैव अ फ्यू थिंग्स जो मुझे अपनी लाइफ में करनी है और वो मैं तभी कर पाऊँगी जब मैं उस पर 100% फोकस तरीके से दिमाग लगा पाऊँ. एंड बिलीव इट और नॉट आगे चल के व्हेन यू हैव अ फैमिली, व्हेन यू हैव चिल्ड्रन, व्हेन यू हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इट गेट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. मैं ये नहीं कह रही कि हो नहीं पाता है लेकिन काफ़ी मुश्किल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू राइट नाउ व्हेन आई एम जस्ट 24. मेरे पास किसी और इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. वट एवर आई एम अर्निंग फॉर माई सेल्फ. मेरे घर से भी ऐसी कोई मेरे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे मेरे घर पे पैसे भेजने होते हैं या कुछ. तो मैं जो भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ. एंड इसीलिए आई फील राइट नाउ इज़ द राइट टाइम व्हेन आई कैन टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क फॉर माई सेल्फ इन द लाइफ. नाउ आई अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल and in fact even my parents feel ki you're leaving such a safe, secure, conventional career for something that is not known और exactly शायद तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या करना चाहती हो. And I think that is exactly the point. I want to go with my gut at this point. I want to explore things at my own pace. I know I might feel like a little mad to you लेकिन मैं अभी ये genuinely करना चाहती हूँ ताकि at age 60-70 when I'm on my deathbed I don't regret कि यार 24 साल की उम्र पे वो leap of faith शायद ले लेती तो life कुछ और ही दिखती. And that is majorly all of my reasons to go for this particular option that I am going for of not giving PG and not even going for any other post-grad courses as of now and just taking a break here and exploring life by myself. Even you have the slightest of confusion कि तुमको अपनी life में क्या करना है या तुम थोड़े से भी नाखुश हो of with whatever you're doing right now. I would really like you to think about the fact that तुम्हें personally अपनी लाइफ चाहिए कैसी. मुझे लगता है काफ़ी अंडररेटेड क्वेश्चन है और हमसे कभी कोई नहीं पूछता है जब हम 16-17 साल के होते हैं और तब शायद हम में इतनी अकल भी नहीं होती. लेकिन अब जब वी आर 22-23 वी हैव सीन द वर्ल्ड अ लिटिल बिट, वी नो व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ वी वांट फॉर आवरसेल्व्स. इफ़ वी सिट डाउन एंड एक्चुअली थिंक अबाउट इट तो उस डायरेक्शन में काम करना, आगे बढ़ना मेरे अकॉर्डिंगली काफ़ी आसान हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया है कि आई एम अ पर्सन जो चाहता है कि व्हेन आई हैव माई ओन फैमिली एंड व्हेन आई हैव माई ओन चिल्ड्रन आई एम रिलेटिवली फ्री इन लाइफ एंड मेरा कुछ ऐसा बिजनेस हो या कुछ ऐसा काम हो कि मैं उसे स्लाइटली ऑटो पायलट मोड पे डाल सकूँ एंड आई एम बीइंग एबल टू गिव फुल टाइम एंड अटेंशन टू माई फैमिली एंड माई चिल्ड्रन. ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे मेडिसिन इज इन अ वेरी स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू दिस काइंड ऑफ अ ट्रेजेक्टरी दैट आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ इन माई लाइफ. क्योंकि at this age of 28-30 you are fresh out of PG or you're fresh out of SS and this is actually your time to work extremely hard, build your name in the industry, build your name as a doctor, do a nice job or start setting up your own thing. तो ये काफ़ी in contrast run करता है with the biological clock as well. तो इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं अभी कुछ अपना कर लेती हूँ and I'm able to get that freedom in life that by 27-28 मैं इतनी capable हो जाऊँ कि whatever I have I'm able to put it either on autopilot or I build a team that helps me take care of it and I don't have to be present there actively उतना ज़्यादा.
that is more like the kind of life that I am willing to live and lead for my own self. And now of course I know you might have a lot of questions on ki theek hai, we get it ki you don't want to go to a full-time PG course or anything, but then what is something that you are really willing to do in your life, Mitali? I'm sure बहुत लोगों को लग रहा होगा कि I am going to do content creation full time, right? रॉन्ग मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी कंसिडर कर रही थी. मतलब ये एक साल हैज़ बिन फुल ऑफ यू नो थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, टॉकिंग टू मैनी पीपल, टॉकिंग, टेकिंग एडवाइजेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो मैंने सब कुछ सोचा है, मैंने सारे पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर किए हैं. एंड फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी यस मैं कंसिडर कर रही थी, लेकिन आई स्क्रैप दैट आइडिया बिकॉज ऑफ अगेन मल्टीपल रीजन्स. एक तो मैं हमेशा से कंटेंट क्रिएशन एज अ साइड हसल, एज अ साइड गिग करती हुई आई हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है कि द मोमेंट आई एड दैट एक्स्ट्रा प्रेशर टू इट कि अब ये मेरा फुल टाइम है और अब यही है जो है, मुझे लगता है द क्रिएटिविटी और द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू डू, बिकॉज आई डू कॉन्टेंट बिकॉज आई लव टू डू इट. तो जैसे ही मैं उस हॉबी को, उस क्रिएटिव प्रोसेस को एक काम बना देती हूँ, मुझे लगता है दैट क्रिएटिविटी थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है. सो दैट इज़ वन रीज़न. सेकेंड, ऑफकोर्स द फैक्ट दैट आई नो कि कॉन्टेंट क्रिएशन इज़ नॉट अ 20-year गेम. मुझे नहीं पता 20 साल बाद कॉन्टेंट होगा भी कि नहीं, दिखता कैसे होगा या क्या. हाउएवर आई नो दैट इट इज़ अ ग्रेट टूल फॉर पर्सनल ब्रांडिंग एंड मैं करती रहूँगी. मैं जब तक कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ और मुझसे हो रहा है एंड इट इज़ गेटिंग मी गुड रिटर्न्स. बट हाउएवर मैं साइड बाय साइड और चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी विच आर एज फॉलोज. तो सबसे पहले तो कई सारे प्लान्स बनाए मैंने. मुझे हेल्थ केयर से कम्प्लीटली कट नहीं होना है. सो प्राइमरीली आई एम गोइंग टू गो बैक होम एंड मुझे नहीं पता ये होने कब वाला है, लेकिन आई वॉन्ट टू गेट टू द मैनेजरियल साइड ऑफ अ हॉस्पिटल, learn how to run a hospital. And I don't know if you guys know or not, but हमारा एक छोटा हॉस्पिटल है आगरा में where I want to go back. I don't want to practice, I don't want to sit and like see patients, but I want to rather learn the managerial side of it, because I think that is something my parents also struggle with and they actually need somebody जो अच्छे से उसको मैनेजमेंट में हेल्प करवा पाए. And I think I personally really want to learn how to do it, क्योंकि मुझे लगता है कि this is something that really drives me and ये मुझे हेल्थ केयर से थोड़ा कनेक्टेड भी रखता है. So that is one major plan that is happening for sure. Number 2, of course, content चलता रहेगा. Number 3, Ekami के लिए I'm planning new launches and bigger, better business strategies. Workshops is also something जो हमने recently explore किया है and I really want to go ahead with it. Number 4, I am very soon planning to launch a course. This will be an online course about personal branding and how can you make it big at content while not leaving your job or not quitting your full-time opportunity, whatever it is. तो ये एक course है जो मैं build कर रही हूँ and I think you guys will be able to see it soon. इसके अलावा भी 3-4 चीज़ें हैं जो pipeline में है, एक brand और कुछ तो वो सब एंड इसके अलावा आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई टू बी अ डिजिटल नोमैड फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, जिसके लिए मुझे अभी अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है. बट लाइक आई वॉन्ट टू बेसिकली वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ट्रैवल इज समथिंग दैट हैज़ ऑलवेज ड्रिवन मी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए निकल जाऊँ आउट ऑफ इंडिया. It's not like a travel trip, but I am able to travel along with also working on my own terms. मैं अपना काम भी कर रही हूँ and साथ में मैं travel भी कर रही हूँ and क्या पता we get some opportunities through this. I'm a huge fan of the concept of networking with people. पिछले कुछ टाइम में मैंने लेफ्ट राइट सेंटर इतने लोगों से बात की है, बेशर्मों की तरह बात की है, बिना सोचे समझे मैं बस चली जाती हूँ लोगों के पास और मैं बात करने लगती हूँ. बिकॉज
right now I'm at that stage in my life कि you never know which conversation leads to something huge in your life. By the way, if you're going through something similar that I have been going through, I would highly recommend you the book called Who the F You Are. This is by Harinder Singh Belia, and I think this book has helped me gain a lot of clarity in life. It might also help you, so go ahead. अब हम आ जाते हैं थोड़े से पर्सनल क्वेश्चंस, सवाल और थोड़ी सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता है शायद कमेंट सेक्शन में रहेंगी. नंबर वन ऑफ कोर्स बीइंग दैट हाउ डिड यू कन्विंस योर फैमिली, एंड आई थिंक आई डिड नॉट फील द नीड टू. पहले जब मैंने अपने पेरेंट्स को पहले कन्फ्रंट किया था, उन्होंने मुझे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था. उन्हें लगा था कि इसका थोड़ा सा कुछ टाइम का थॉट है, बिकॉज ये थोड़ी शायद ज़्यादा अभी फ्रस्ट्रेटेड है काम से, या इसको लग रहा है ये नहीं कर पाएगी, बट ये इवेंचुअली कर लेगी. लेकिन फिर थ्रू द मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप एज दे पास्ड, एंड जैसे जैसे मैं बात करती गई अपने पेरेंट्स से, वो खुद ही समझते गए कि yes, this is not for her and she might not be able to do it. वो 100% कन्विंस्ड और इन कन्विक्शन मेरे इस डिसीजन से अब तक नहीं है. अगर आज भी मैं उनको जाके बोलूँगी कि मैं पीजी कर लेती हूँ, तो दे विल बी वेरी हैप्पी एंड दे विल जंप कि हाँ कर लो. लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि बिकॉज अब मैंने ये डिसीजन ले लिया है, तो दे जस्ट सपोर्टिंग मी, एंड आई एम ग्लैड एंड एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि वो मुझे इतने बड़े डिसीजंस में भी सपोर्ट करते हैं, और उनको वो कन्विक्शन है कि हाँ, अगर इसने डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा. सो ऑफ कोर्स दैट. सेकेंड एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लैश एडवाइस दैट पीपल विल गिव मी इज कि यू नो, तुमने अपनी डिग्री खराब कर दी, तुमने अपने 5 साल खराब कर दिए, यू स्पॉइल्ड अ सीट एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उसके लिए मैं बस ये बोलना चाहूँगी, आई एम रियली सॉरी इफ़ यू फील सो. लेकिन सीट जो है वो मेरिट पे मिलती है. मेरिट इस चीज़ से डिसाइड होती है कि आपके नीट में रैंक और मार्क्स कितने आएंगे. वो रैंक और मार्क्स कोई भी ला सकता है, और बिकॉज द सिस्टम गिव्स मी द फ्रीडम टू लीव इन बिटवीन, आफ्टर और बिफोर, तो I don't think it is a seat wasted. I still have the knowledge of healthcare that I have. I still am a fan of the human body and I love to learn about it. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान में decent amount of बुद्धि है, तो वो जो भी पढ़ता है, करता है, डिग्री या व्हाटएवर, वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. मैं उसे डेफिनेटली अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं तो यूज़ करूँगी ही. क्या पता कोई स्टार्टअप कर लूँ, क्या पता कोई बिजनेस खड़ा कर लूँ, क्या पता किसी हॉस्पिटल के साथ काम करने लग जाऊँ, आई नेवर नो. लेकिन मैं इस डिग्री को वेस्ट तो नहीं जाने दूंगी अपने लिए. मुझे भी पता है मैंने उसको अपना कितना टाइम और एफर्ट और एनर्जी दिया है. नंबर 3, विच इज समथिंग दैट आई हर्ड इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो अ लॉट, कि अब व्हाई शुड आई फॉलो यू, यू आर जस्ट अनदर कंटेंट क्रिएटर. उनके लिए मैं बस ये कहना चाहूँगी, माई डियर, आई वॉज ऑलवेज जस्ट अनदर कंटेंट क्रिएटर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप मुझे उससे बहुत ज़्यादा की नज़रों से देखते थे, या आप इसलिए मुझे देखते थे क्योंकि आपको लगता था कि मैं कुछ उससे बहुत ज़्यादा हूँ. लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, आई एम जस्ट अ कंटेंट क्रिएटर. मैं एक डॉक्टर हूँ अपने हॉस्पिटल में, मैं एक डॉक्टर हूँ अपने वर्क प्लेस पे, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर ही हूँ. तो ठीक है, प्रॉबेबली आपको ऐसा लग सकता है कि अब मैं वो वाला कंटेंट, मेडिकल कंटेंट या हॉस्पिटल कंटेंट तो मैं वैसे भी ज़्यादा डालती नहीं थी, लेकिन yes, अगर आपको वो वाला कंटेंट मुझसे एक्सपेक्टेड है, या आप को लगता है कि दैट इज़ द ओनली कंटेंट दैट आई शुड बी मेकिंग, देन डेफिनेटली आई एम सॉरी, आई विल डिसअपॉइंट यू. लेकिन इफ़ यू आर समबडी हु इज़ रेडी फॉर ग्रोथ, इफ़ यू आर समबडी who's excited to see the pivot, who's excited to see how I rebuild my life from scratch after leaving a very set, secure, conventional path that everyone thought is the best thing for me, and I have my life set, and now doing something completely different.
If that excites you, I think then this channel is your right place to be at. And last but not the least, a little heart to heart, I am extremely grateful for you guys. मुझे ये भी पता है कि कई लोग ये बोलेंगे कि हाँ बिकॉज अब तुम्हारे पास कंटेंट है तो तुम ये डिसीजन ले पा रही हो बिकॉज यू अर्न अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी एंड यू हैव दैट फ्रीडम, एंड आई completely acknowledge that and I completely agree with that. I am extremely glad and grateful कि मैंने आज से 6 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, कि मैं उसको इतना ग्रो कर पाई. आई कुड गेट सो मेनी पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, सो मेनी पीपल नो मी. कंटेंट क्रिएशन की ही वजह से मैं लाइफ में इतने सारे लोगों से मिल पाई, इतने सारे फ्रेश पर्सपेक्टिव्स एक्सप्लोर कर पाई, इतनी सारी नई चीज़ें सीख पाई, एक बिजनेस स्टार्ट कर पाई. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली मुझे लाइफ में ये 5 साल की 6 साल की कॉलेज लाइफ में इतना एक्सपोजर मिला है कि अब मेरे पास ये पर्सपेक्टिव है और मैं ये सब सोच पा रही हूँ कि मुझे मेरी ज़िंदगी आगे कैसे देखनी है या मैं अपनी लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना चाहती हूँ क्या नहीं करना चाहती. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ कंटेंट. And the money bit, I am not going to take that away at all. Yes, it plays a big factor कि मैं independent हूँ, that I don't have to ask my parents for money, that I am being able to take this decision. But and at the same time, because of this, I don't want to depend on content completely for my independence or for my money or for what exactly I do. सेकेंडली आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो ये डिसीजन मैं ले रही हूँ इट इज़ अ स्लाइटली अनकन्वेंशनल डिसीजन, एंड मैं इस वीडियो से इन नो वे ये डिसीजन प्रोपगेट कर रही हूँ. मैं इन नो वे ये बोल रही हूँ कि सबको ऐसे ही करना चाहिए या सबको MBBS छोड़ के या PG छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए. एंड दिस इज़ इन नो वे टू डीमोटिवेट और टू टेल एनीबडी हु इज़ वांटिंग टू परसू एन MBBS कि तुम मत करो या MBBS के बाद PG मत करो. दैट इज़ कम्प्लीटली नॉट वॉट माई इंटेंशन इज़. इन दिस वीडियो आई एम ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट मुझे क्या लग रहा है अभी मेरे लिए काम करेगा. अ लॉट ऑफ पीपल इन द कॉमेंट सेक्शन हैड ऑल्सो आस्क्ड मी कि अगर आज आप 10th में होते या 11th में होते कि आप स्टिल MBBS करना प्रेफर करते. ऑनेस्टली नोइंग दैट मैं PG के लिए नहीं जा रही हूँ फिर भी येस मैं MBBS करना प्रेफर करती, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आज जिस तरह की इंसान हूँ मेरे पास जिस तरह की लर्निंग्स हैं पर्सपेक्टिव्स हैं उसमें बहुत बड़ा एक रोल है ऑफ डूइंग MBBS. एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ द ह्यूमन बॉडी. एज आई सेड, आई लव टू लर्न अबाउट इट, आई लव टू लर्न अबाउट द डिजीजेस, द कंडीशंस, द ट्रीटमेंट्स. तो मुझे ऐसे लगता है कि ग्रेजुएशन डिग्री को अगर हम पूरी अपनी लाइफ ना बना के बस एक डिग्री की तरह देखें, एक टूल की तरह देखें जो हमें आगे हेल्प करती है हमारा करियर बिल्ड करने में, हमारी जॉब्स डिसाइड करने में और द काइंड ऑफ लाइफ वी लीड वो डिसाइड करने में, तो हम थोड़ा अनबायस्ड तरीके से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम जो डिग्री कर रहे हैं वो पूरी लाइफ के लिए नहीं कर रहे हैं, वो बस उन 3, 4, 5 साल कुछ सीखने के लिए कर रहे हैं. MBBS ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग्स दिए हैं. तो मैं तो 100% आज भी MBBS करती इफ़ गिवन द चॉइस. एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, आई completely understand and acknowledge the kind of privilege that I come from, be it financial, be it in terms of कि मेरे parents मुझे कितना support कर रहे हैं, and be it the fact that I have something else to rely on while I am still figuring out my life. And I also understand कि बहुत लोगों की ज़िंदगी में ये नहीं होता है, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ श्योर प्रिविलेज कि मैं ये कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ. सो आई completely acknowledge that. I am extremely grateful for that. I'm extremely grateful that you guys are around so that मैं ये इतना बड़ा डिसीजन ले पा रही हूँ और ये इतना बड़ा डिसीजन मैं इस तरह से बैठ के बता के समझा पा रही हूँ और ये जो बोझ है मेरे कंधे से वो उतार पा रही हूँ. ट्रस्ट मी, मुझे बात करके यहाँ पे आके बोल के बहुत रिलीव्ड फील हो रहा है. मैं बहुत टाइम से ये वीडियो बनाना चाहती थी लेकिन हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था. आई वॉज जस्ट फीलिंग कि पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे या लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे. लेकिन अब ये बात करके मैं काफ़ी रिलीव्ड हूँ. आई जस्ट hope you guys understand that I understand that this is an unconventional decision, and I am in no way negating the fact that
I am extremely privileged that I am being able to take this decision. However, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इतना बड़ा decision ले रही हूँ, so this doesn't go into vain, and I'm able to give back to people, give back to the society 10x more jitna main otherwise de pati. And yeah, that is about it. That is all I had to say. I hope you understand where I am coming from. If you don't, it's okay. I probably get you. मैंने ये भी वैसे बता दिया है what kind of content would be coming on the channel. Of course not college, of course not exams, and of course not hospital, because that's not how my life is going to look like. तो ये रियलिटी चेक भी दे रही हूँ कि किस टाइप का कंटेंट आप मुझसे एक्सपेक्ट कर सकते हो. ऑफ कोर्स काफ़ी डिफरेंट होने वाला है एंड काफ़ी फन हो सकता है फॉर अ फ्यू पीपल. आई डोंट नो, मैं काफ़ी कुछ प्लान कर रही हूँ यहाँ के लिए, लेकिन इफ दैट डजंट ड्राइव यू, वेरी रिस्पेक्टफुली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. एंड या अगर आप नहीं देखना चाहते मेरे वीडियोस तो आई एम जस्ट सॉरी, एंड इट इज़ ओके. आई मीन इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यू कैन डेफिनेटली गेट द काइंड ऑफ कंटेंट फ्रॉम समवेयर एल्स, आई एम श्योर. लेकिन मैं एट दिस पॉइंट वही कंटेंट बनाना चाहती हूँ और बना सकती हूँ जो मेरा ऑथेंटिक सेल्फ मुझे अलाउ करे. So yeah, that is majorly all I had to talk about. I hope you enjoyed this video. I hope you got perspective, and I cannot wait to share with you my journey ahead. Welcome to the plot twist.